Once again, so let's start with the next topic of trigonometry. Today's topic is once again going to be very important because let's see what we are going to discuss in this. Okay, so remember all of this will be the part of your test tomorrow, and I would like to know that I would like to see that who would score better than the previous test. Okay, so of course you will get your copies corrected in the form of voicemail so that it will be a more personalized part जहाँ पर मैं आपको आपकी individual mistake बता देता हूँ. So as in जिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम है, जो लोग अभी just आए हैं, that कि there is a group on WhatsApp जो कि बना हुआ है class 10 के students का, so any person can join that particular group, of course with riders that please do not put any of the waste comments, which till now we are very fortunate that हमारे सारे students बहुत अच्छे हैं and everybody is studying very hard. Okay, so उसके अंदर आप join कर सकते हो and then join करने के बाद में you can post your photographs of not yours but the photographs of your worksheets जो आपको homework के अंदर मिलता है, and I think the students are doing fantastically good. So guys, I'm really very happy. Keep up the tempo. एंड ध्यान रखना कि ये आपको भी मालूम नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो इतना कुछ खास हुआ नहीं है. You would come to know once these chapters would be done in the school, you will come to know that what actually is the difference then. Okay, now without wasting time, let's start with the part of trigonometry once again. So yesterday we did see the part that what were the trigonometric ratios, हम लोगों ने कैसे complementary angles करे. Now somebody did ask in the comments, sir, is it compulsory to write the ratio? Please remember, the trigonometric ratios or values. Please remember, डिग्री की जगह पर कुछ ना कुछ तो चाहिए. आप x लगा लो, y लगा लो, a लगा लो, 70 डिग्री डाल दो, b डाल दो, -2/3 डाल दो, फैन डाल दो, कुंडी डाल दो, गाइस कुछ भी डाल दो. But you have to put something ahead of sin, cos, tan, cosec, sec. ऐसे नहीं छोड़ सकते. You can write x, you can write sin 70 degrees. You can write cos 20 degrees and so on and so forth. Okay. So आज हम मूव करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर में जो वन ऑफ दी मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं. लेट्स ट्राई एंड सी कि उन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा. कल तक आपने एक ट्रिक देखी थी कि पहले आप एंगल्स को चेक करोगे. ओके, एंगल को चेक करने के बाद में एंड देन यू विल सी दैट वी नो व्हाट नीड्स टू बी डन. यदि एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, बधाई हो, किसी भी एक को चेंज करो, दूसरे को हाथ मत लगाओ, आंसर आ जाएगा. Now let us see. Suppose करो किसी ने क्वेश्चन दे दिया आपको something like this. Sin theta is equals to 2/3. Sin theta equals to 2/3. अब उन्होंने आपको बोला है find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. Let's change the marker. I'm sorry. Find all trigonometric ratios. मैंने अपने मन से कुछ भी रैंडम ले लिया है, 2, 3. ओके, आप कुछ भी ले सकते हो. So this is sin theta equals to 2/3. अब पहला काम क्या करोगे? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं आपको पहला फर्स्ट तरीका बता देता हूँ, देन सेकंड एंड देन आई विल टेल यू द थर्ड. चॉइस इज योर्स, आपको जिससे करना है उससे कर सकते हो. इफ sin theta equals to 2/3, सिंस ये रेशियो में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2k/3k, where k is any constant. अब पहले तो इसका मतलब समझो. 2k/3k क्यों लिखा? सर k और k तो कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो 2 और 3 भी लिख सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, k का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 2 और 3 ही होगा. कैसे? सर 2 इंटू, मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर डाल दिया k की जगह पर 4, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 इंटू 8 विल बी, या 3 इंटू 4 विल बी 12, तो आंसर विल बी 8/12. आप बोलोगे लेकिन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ही आएगा. ऑफ कोर्स यस, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ? नाउ ट्राई एंड सी दिस. आपको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सबसे पहला वाला काम, आपको ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड या बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. तो मैंने पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, sin थीटा इक्वल्स टू 2k/3k शुड बी इक्वल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भूले. सो पंडित मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ऑपोजिट साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूज.
Now start comparing. So P should be equals to 2K and H should be should be equals to 3K. Now guys, very important part is majority. I would not say that teachers are teaching you wrong or might be that something आपके समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है. But कभी कभी teachers बोलते हैं that directly write P should be equal to 2 and H should be equal to 3. That is highly incorrect. Whosoever is saying that, guys, do not write that. Please understand. आप बोलोगे सर लेकिन K और K तो कैंसिल हो जाएगा, तो P can be written as 2 and H can be written as 3. That simply means P is not equal to 2, because यदि आप डायग्राम बनाओगे और मान लो आपने ये फिगर बनाया है तो P यहाँ पर 2 और H 3, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ये भी तो हो सकता है P की वैल्यू 8 हो और H की वैल्यू 12 हो, कुछ भी हो सकता है. बट यदि आपने 2 और 3 लिख दिया, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ऑपोजिट साइड 2 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर की है, 3 मीटर की है. दैट इज द रीजन व्हाई ऑलवेज यूज K. आई वुड प्रेफर यू टू यूज K. ओके, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी आप K यूज करो, आप A B C कुछ भी यूज कर सकते हो, बट यूज अ कांस्टेंट प्लीज. सो P शुड बी इक्वल्स टू 2K बिकॉज उसके सामने H शुड बी इक्वल्स टू 3K. P आ चुका है, H आ चुका है, अब बचा बेस मतलब एडजेसेंट साइड. ऑपोजिट साइड आ चुकी है, H आ चुका है. अब बेस कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. याद है पाइथागोरस थ्योरम यही होता है. नाउ B शुड बी इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. So if you are going to take this value over here, I mean keep the value over here, and then if you are going to take this value onto the left hand side, तो ये बन जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. फिर आप स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ B शुड बी इक्वल्स टू, लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज. H का स्क्वायर 3K का स्क्वायर इज 9K स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज 4K स्क्वायर. B शुड बी इक्वल्स टू 9K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर should be equals to root 5K square. जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा root 5K. So now you have got the value of B also. As soon as you have got the B की value, now you can find it out. So what is cos theta? Cos theta should be equals to B upon H, which is adjacent side upon hypotenuse or base upon hypotenuse. So B should be equals to what? B कितना आ रहा था? root 5 K upon H कितना आपने लिया था? That was 3K. So let's write 3K. K and K will get cancelled. So answer is root 5 by 3. Then let's talk about the word tan theta. अब tan theta को करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहले तो अपना बेसिक तरीका, tan theta should be equals to P upon B. What is P? P वाला पार्ट अपने पास में था 2K, which was perpendicular, जिसको हम लोग opposite side भी बोलते हैं. And B was what? That is root 5K. So it will be root 5K. So this should be equals to 2 by root 5. अब तो guys बच्चों वाला तरीका है cosec theta. You just need to write the formula. So that is H upon P और hypotenuse upon the opposite side. तो कुछ नहीं करना guys, जो भी sin theta आया था उसका उल्टा कर दो. So it will be 3 upon 2 or 3K by 2K, and it will be 3 upon 2. Okay, let's write 2 properly. So 3 upon 2. Then comes guys sec theta. It should be equals to H upon B. So what is cos theta का उल्टा? Cos theta कहाँ गया? ये रहा. So this is root 5 upon 3. So this will become 3 upon root 5. Then comes guys cot theta. Common sense guys, it will be tan theta का उल्टा. So which is 2 upon root 5. So it will become root 5 by 2. And that's all guys, it's done, and that's all the answer is. So this is method number 1. Okay, now let's talk about the method number 2 using identity. So I'm just rubbing this off. मैं आपको दोनों एक एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, थोड़ा गंदा सा लेके, कुछ माइनस साइन के साथ में, कुछ अपॉन और कुछ गंदा नंबर लेके, and then I'll do once again by 2 methods. Okay, so let's take another question. Let's change the question. अच्छा, अभी तो मैं यही वाला क्वेश्चन आपको सेकंड वाले मेथड से करके दिखा रहा हूं. दिस इज नोन एज बाय द मेथड ऑफ आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज sin थीटा इक्वल्स टू 2 upon 3. क्वेश्चन था फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपके पास में आपको वो जो ब्रह्मास्त्र था अपने पास में,
दैट वाज sin square थीटा प्लस cos square थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। याद है? करेक्ट। आपको वो आइडेंटिटीज याद रखना है बस। sin square थीटा प्लस cos square थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। लेट्स पुट डाउन द वैल्यू ओवर हियर। सो ये आ जाएगा sin square थीटा की जगह पर 2/3 होल स्क्वायर प्लस cos square थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। और ये 2 क्यों लिख दिया? ओके और 2/3, 2 का स्क्वायर इज 4/9 प्लस cos square theta should be equals to 1 और cos square theta should be equals to 1 minus 4/9 और cos square theta should be equals to 9 minus 4 will be 5/9 और squaring or square rooting both the sides cos theta should be equals to √5/9 और it should be equals to √5/3। यदि आप चेक करोगे पहले वाले क्वेश्चन से so this value will be the same। पहले वाले क्वेश्चन मतलब जो अपन ने पिछला वाला मेथड किया था उससे आंसर मैच करेगा। तो sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है आपके पास में, cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। गाइस अब बच्चों वाला भी आपको मालूम होना चाहिए, 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ that tan थीटा should be equals to sin थीटा by cos थीटा। सो अब आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालोगे? सिंपल, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? दैट इज 2/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? दैट इज √5/3। √5/3 यही वैल्यू है, √5/3 and 2/3। कॉमन सेंस गाइस, 3 and 3 will get cancelled, so what is the answer? 2/√5। if tan theta should be equals to 2/√5, अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, अब आपको निकालना है कोसेक थीटा। तो गाइस ओरली हो जाएगा, तो कोसेक इसका उल्टा कर दो, दैट इज 3/2 सेक। कॉस का उल्टा कर दो, सो कॉस थीटा का उल्टा इज 3/√5। देन tan गाइस कॉट थीटा का उल्टा कर दो, विच इज √5/2। सो विच एवर मेथड यू फील लाइक यू कैन डू इट, आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। मैं जब ये टेस्ट दूंगा तो आई विल स्पेसिफिकली से दैट यूज द मेथड ऑफ डायग्राम्स एंड फाइंड आउट ऑल द साइड्स एंड देन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब आपको डायग्राम बना के करना है, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी नोन एज बाय द मेथड ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, बट दिस टाइम थोड़ा गंदा क्वेश्चन लेते हैं। आपको बस केवल आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। Okay, now let's take this question. So the first question goes something like this. So it will be, okay, if cosec theta should be equals to -5/2. If cosec theta is equals to -5/2, find all the other trigonometric ratios. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, cosec theta equals to -5/2, find all the trigonometric ratios. इस बार मैं यहाँ पर वापस से क्या कर रहा हूँ, that is -5 okay k by 2k. cosec theta should be equals to -5k, बल्कि माइनस साइन नहीं लेता अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए। So let's remove this. So cosec theta should be equals to 5/2, मैंने ले लिया 5k/2k. So cosec theta का फॉर्मूला क्या होता है? It should be equals to, that is hypotenuse upon perpendicular और hypotenuse upon opposite side. अब क्या करोगे? सबसे पहले एक डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी मार्क कर दो, से ABC। अब आपने h कितना मार्क करा हुआ है? 5, तो आपने h इज हाइपोटेन्यूज which is 5k। P perpendicular, यदि आपने ये एंगल लिया तो एक R बना देना, P perpendicular is 2k। अब आपको बेस निकालना है, तो वेरी सिंपल, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, h square should be equals to p square plus b square. So h should be equals to 25k square should be equals to p square is 4k square because squaring of this, plus b I do not know, that is ab square. सो या मैं इसको पी स्क्वायर लिख देता हूँ, सॉरी बी स्क्वायर लिख देता हूँ। सो 25 - 4 विल बी 21k स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर और b शुड बी इक्वल्स टू √21k।
सर के बाहर क्यों आया? बिकॉज के पेयर बन चुके थे, राइट? सो दिस इज बाय द वे आई हैव नाउ गॉट द वैल्यूज. नाउ लेट्स राइट द वैल्यूज. सो P should be equals to 2k, B should be equals to root 21k and H should be equals to 5k. अब बच्चों वाला काम. सो लेट्स अप्लाई साइन थीटा. किसी ने बोला तो आप साइन B भी निकाल सकते हो, साइन B. ओके, तो साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू P अपॉन H. सो व्हाट इज साइन थीटा? कॉमन सेंस कोसेक का उल्टा ही होगा. सो इट विल बी 2 अपॉन 5. कैसे आया? 2k upon H. H was 5k. K and K cancels. I am just directly writing this. Now comes cos theta. Cos theta कितना हो जाएगा आपके पास में? That is B upon H और adjacent side upon hypotenuse. So B should be equals to root 21k. I am not writing K. K and K get cancelled. And H should be equals to कितना था आपके पास में? 5k. K and K will get cancelled. Okay. Then comes tan theta. Choice here आपकी है. आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली भी. It should be equals to P upon B, which should be equals to opposite side upon the adjacent side, and it should be equals to what is P? 2k 2, and what is B? Is root 21. So ये आ गया root 21. Okay. Now अब आ जाते हैं इसके उल्टे वाले पैरामीटर्स पे. तो कोसेक तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, लिखने की जरूरत नहीं है. Next, sec theta, it should be equals to H upon B, इसका उल्टा कर दो 5 by root 21. Then comes cot theta. तो cot theta should be equals to B upon P. It should be equals to root 21 by what? Cot theta tan का उल्टा होगा by 2, and that's all is the answer. Now I am not rubbing this particular question right now, so I am not erasing this question. Now let's start solving the same question by the method of what? By the method of identities. So let's solve this. So मैं identity से भी solve कर देता हूँ. Identity कैसे करोगे? Let us see. सबसे पहला वाला पार्ट साइन थीटा था मेरे पास में, कोसेक थीटा दिया हुआ था. सो अब पहले आपको एक ऐसा आइडेंटिटी ढूंढना है जिसमें कोसेक थीटा आता है. तो कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? आप चाहो तो वैसे इससे भी कर सकते हो, बट कोसेक थीटा की आइडेंटिटी कल यदि आप देखोगे तो कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाती है? दैट इज, कुछ आया नहीं मेरे को समझ में, आवाज नहीं आई. खैर कॉमन सेंस आवाज कैसे आएगी? सो कोसेक थीटा शुड बी इक्वल्स टू, इट शुड बी इक्वल्स टू, मैंने डिवाइड करा पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से, तो इट शुड बी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस and then cot square theta. कुछ याद आया? कल का फॉर्मूला, कल की आइडेंटिटी. Guys, those 3 identities which can be converted into 9 identities, you need to remember that. And मैंने कल भी आपको बताया था, यदि आपको लर्न भी नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको यही क्वेश्चन आइडेंटिटी मेथड से ही एक और तरीके से करके दिखा दूंगा, तब भी आ जाएगा. बट बेटर रहेगा आप इससे ही कर लेना. सो कोसेक स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. कोसेक की जगह पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज 5 अपॉन 2 गिवन. तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 25 अपॉन 4. ये 25/4 था, उस तरफ में गया, एंड दैट्स ऑल. ओके, मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या? नहीं, 25/4, ये 1 को वहां पर लेके जाना पड़ेगा. सो 25/4 minus 1, because 1 needs to be taken over at that side. So cot square theta, 25 minus 4 will be 21/4, or cot theta should be equals to root 21/4, or it should be equals to root 21/2, because 4 का अंडर रूट 2. तो ये आ चुका आपके पास में cot थीटा. लेट्स चेक उनका cot थीटा क्या आ रहा था. cot थीटा शुड बी इक्वल टू रूट 21/2. मैचिंग, नो प्रॉब्लम. अब कॉमन सेंस गाइस, जब cot थीटा आ चुका है तो यहीं पर ही लिख देते हैं. व्हाट डू यू थिंक? tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2/√21. लेट्स चेक. tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2/√21. सो नो प्रॉब्लम. ओके, सो हमारे पास में कोसेक भी आ चुका है एंड कॉट भी आ चुका है, टैन भी आ चुका, और कोसेक का उल्टा दैट इज साइन थीटा कितना आ जाएगा, उसी को उल्टा कर दो.
कितना 2/5, क्योंकि कोसेक थीटा तो दे के रखा हुआ था। नाउ यू हैव गॉट साइन थीटा भी आ गया, साइन थीटा आ चुका, टेन थीटा आ चुका, कोसेक थीटा आ चुका, कॉट थीटा आ चुका, बचा कौन सा, कॉस एंड सेक। सो वेरी सिंपल, अगेन डिफरेंट वेज। अब जब साइन थीटा है आपके पास में तो वंस अगेन आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। जो मालूम है ना वो आइडेंटिटी के अंदर पुट करते जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 4/25, और इट शुड बी इक्वल्स टू 21/25, और cos theta should be equals to √21 square rooting both the sides by 5। अब जब cos थीटा ये आ गया तो लेट्स मैच cos थीटा इज √21/5 मैचिंग। यदि ये आ गया है नो प्रॉब्लम, अब आप इसको sec में कन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर। सो sec कितना हो जाएगा 5/√21। सो इन दिस वे whichever method you feel like you can do it। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था आइडेंटिटी का एक और तरीका कौन सा हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/2, आप पहले ही साइन थीटा निकाल दो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2/5। नाउ डू इट इन द लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे करोगे, साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा निकालो विच इज 4/25, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट कर दो, अल्टीमेटली द सेम आंसर, करेक्ट। So whichever method you feel like you can apply that, no rigidity guys, be flexible, आराम से करोगे, आंसर गारंटी आता है, कभी गलत नहीं होता। Are you sure? Okay. Now आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए इस तरह के क्वेश्चन। अब लेट अस से सपोज एक कुछ गंदा टाइप का क्वेश्चन है, तो आई एम ट्राइंग इट, आई डोंट नो वेदर आंसर विल कम और नॉट। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, आपको खुद को नहीं मालूम कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स चेक। सो लेट अस से सपोज एक कोई क्वेश्चन आया और किसी ने आपको एक रैंडम कुछ लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा, ओके। या आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कन्वर्ट every trigonometric ratio, convert every trigonometric ratio in the form of sin theta। Okay, so this marker is also dead. Let's take the next marker। किसी ने बोल दिया सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। Convert all of these, by the way, trigonometric ratios into what? Convert all of these trigonometric ratios into sin theta। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो हर एक का sin थीटा में ही आना चाहिए। सर मतलब नहीं समझ में आया। Let's see। So let's write first sin थीटा, ये तो खैर sin थीटा के ही फॉर्म में है, so no problem। बट लेट्स राइट फर्स्ट कॉस थीटा। अब आपने कॉस थीटा लिख तो दिया, बट आपके आंसर में साइन थीटा ही आना चाहिए। अब कॉस थीटा को साइन थीटा कैसे बनाऊं, हाउ कैन आई कन्वर्ट कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। यू विल से साइन 90 माइनस थीटा, ऑफ कोर्स आप वो भी लिख सकते हो, बट टेक्निकली उन्होंने आपको यूजिंग आइडेंटिटीज बोला है, मान लो क्वेश्चन के अंदर। तो अभी आप क्या करोगे, सिंपल, सबसे पहले इससे रिलेटेड आइडेंटिटी ढूंढो। कौन सी आइडेंटिटी ढूंढोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। आपको कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो दैट मीन्स आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे तो कॉस थीटा चाहिए, नो प्रॉब्लम, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स। तो cos थीटा की जगह पर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इसका मतलब क्या होगा, समझ में नहीं आया। लेट्स अंडरस्टैंड। दे आर टेलिंग यू कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट इनटू
एनीथिंग एट ऑल, बट उसके आंसर में साइन के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए. सो हाउ कैन यू राइट कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ जो लोग एकदम टॉपर्स वाले लेवल के हैं, यहां से उनको मिल जाती है ट्रिक. दीज आर द ट्रिक्स. आपको क्या लगता है ट्रिक्स बनाते हैं? नो नो, ट्रिक्स ऐसे निकलती है. इसका मतलब सपोज करो कभी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली किसी ने आपको वैल्यू दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और किसी ने आपसे पूछा बताओ कॉस थीटा निकालना है, तो सिंपल, यू शुड नो द फॉर्मूला. इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 1/4. कैसे आया? 1/2 का स्क्वायर. 4 माइनस 1 है, आंसर इज √3/4 और आंसर इज √3/2. So cos theta should be equal to √3/2. But anyway, let's not go into it. So ये आ चुका हमारा पहला वाला. अब हम आते हैं द नेक्स्ट वाले पार्ट पे. सर ये तो आपने बता दिया साइन थीटा कॉस थीटा. सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट टैन थीटा? टैन थीटा कैसे करोगे? कॉमन सेंस है, आपको क्या आता है वो देखो. टैन थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा नहीं चाहिए. सो नो प्रॉब्लम, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहने देते हैं. कॉस थीटा की जगह पर ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस. अब तो चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा. सो हाउ विल यू राइट टैन थीटा? टैन थीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब आप खुद देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर और भी कोई, और इस आंसर में और भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? नहीं. अब किसी ने बोला अच्छा लेकिन सर फिर कॉट कैसे करोगे? बच्चों वाला गेम्स गाइस. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. हाउ विल यू डू सेक थीटा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हाउ विल यू डू कोसेक थीटा? 1 upon sin theta. So let's write this. Cosec theta 1 upon sin theta. देखो साइन के अंदर ही आंसर. फिफ्थ sec theta. ये तो बहुत टफ है, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दो. So 1 upon under root of 1 minus sin square theta. Sixth, then comes cot theta. अब ये तो खतरनाक टफ है. It should be equals to under root of 1 minus sin square theta upon sin theta. So guys, technically if you will see, everything is just piece of cake. कुछ भी नहीं है उसमें, बच्चों वाला games. Did you understand this? So please remember, all of these things are very very simple. Now ये तो अपने सर simple वाला करवाया. Let's convert cosec theta into tan theta. ये ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बोल देता हूँ, मैं प्रिपेयर भी करके नहीं आता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स कन्वर्ट दिस. सो शुड आई रब दिस? इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू डोंट वांट टू. लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू tan थीटा. tan थीटा में करें या कोसेक में कर देते हैं? कोसेक में करते हैं, कुछ तो नया होगा. फिर tan का भी करके दिखा दूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम ही टाइम है, मतलब उतना भी नहीं है. ओके, नाउ अच्छा एक ही मार्क का बचा है. सो कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कोसेक थीटा. सो नाउ हाउ विल आई कन्वर्ट दिस? सो फर्स्ट पार्ट इज, मुझे सबको कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं इजीएस्ट पार्ट पे अटैक करता हूं. फर्स्ट, हाउ कैन आई राइट साइन थीटा? साइन थीटा किसका उल्टा भाई होता है? कोसेक थीटा का. तो इसका मतलब है साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 by कोसेक थीटा. नो प्रॉब्लम, पहला हो गया. अब आते हैं दूसरे पे. हाउ विल आई राइट कॉस थीटा? वेरी सिंपल. अब जहां जहां पर भी मुझे आइडेंटिटी में पहले ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज कॉस को कोसेक में कैसे कन्वर्ट करूं. कोई बात नहीं, साइन थीटा तो आ चुका ना. क्या था फॉर्मूला? 1 by कोसेक थीटा. सो लेट्स राइट दिस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1. क्योंकि मेरे पास में कॉस की एक ही किसी भी आइडेंटिटी है और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. लेकिन मुझे तो कॉस थीटा चाहिए. सो कॉस स्क्वायर थीटा
should be equals to 1 minus sin square theta. बट सर इसमें तो कोसेक आ ही नहीं रहा. पेशेंस. So cos theta should be equals to 1 minus sin square theta की जगह पर क्या मैं 1 upon cosec square theta लिख सकता हूं? Of course yes. Now cos theta, I'm so sorry, this is cos square theta, ऊपर से नीचे. Cos theta should be equals to under root of 1 minus 1 by cosec square theta. That's all. So what is the answer of cos theta? आप चाहो तो इसका LCM भी निकाल सकते हो. तो यदि आपने इसका LCM निकाला तो लेट्स सी क्या आएगा. cosec square theta minus 1, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ cosec square theta minus 1 और होल अपॉन cosec square theta आएगा, लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा cosec theta. समझ में आया क्या किया? नहीं? लेट्स सॉल्व दिस. ये देखो अंडर रूट ऑफ इसका LCM लिया तो LCM आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना आ गया? दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा minus 1, and that's all is the answer. So that means that cos theta should be equals to cosec square theta minus 1 upon cosec square theta, but under root से cosec square theta cancel हो जाएगा तो it will be only cosec theta. तो ये भी आ गया. अब गाइस जैसे ही आपके पास में साइन एंड कॉस आ गया, अब tan निकालना. I tell you, tan निकालना is a piece of cake. See, tan theta should be equals to, क्या लगता है क्या होगा? sin theta upon cos theta. बट क्या ये अलाउड है? No, I don't think so. So tan theta cannot be written as sin theta upon cos theta because ऊपर clear cut instruction है that you need to write everything into cosec theta. So how will you solve this? So sin theta कितना आया था आपके पास में? 1 by cosec theta whole upon, and what is cos theta? It should be equals to under root of cosec square theta minus 1 by cosec theta. कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है. So this cosec and this cosec will get cancelled. So final answer is 1 upon under root of cosec square theta minus 1. That's all. वो भी हो गया. Now I'm sure guys that you can now do cosec theta. कैसे करोगे? वो तो cosec theta ही आएगा. sec theta कैसे करोगे? उल्टा कर देना. cosec theta upon under root of cosec square theta minus 1. Cot theta should be equals to under root of cosec square theta minus 1. And that's all. Answer is khatam. Simple. I'm trying to learn Marathi. Okay, so this is all the way done guys. So this would be all for today's lecture. All the best for tomorrow's test. It is going to be a test which is next to Mountain Kanchenjunga, K2 की तरह होगा वो. So let's see कल क्या होता है. Okay. See you guys. Bye bye. Enjoy. Thank you.